Hello students. Today we are going to study chapter 9 of CBSE class 10 science, heredity and evolution. So evolution part has been deleted from the syllabus this year. So we will only study about heredity. So what do you understand by heredity? You will learn a lot of new things in this chapter. So this is very interesting chapter. Listen carefully, read carefully. So heredity is the transmission of characters, features, traits from parents to offsprings. Heredity is the passing or transmission of genetic traits, you can say traits, features or characteristics from parent to offspring. What does it mean? You know about this, that आपके फीचर्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेरेंट से सिमिलर होते हैं. It might be any feature, physical, height, okay, tall, short, or complexion, okay, or mental feature, okay, any mental feature, mental capabilities or emotions. So फीचर्स ट्रेट्स मैच विद योर पेरेंट्स. आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स से मिल रहे हैं, दैट इज़ हेरिडिटी. So you know about this, but we have to study the science behind this, the biology behind this. Why does this happen? Okay, and also you know that not all the characters match with your parents. ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते हैं. ठीक है, हर इंसान अलग अलग, उसका फिजिकल मेंटली अलग अलग होता है. तो ये वेरिएशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. ओके, ये वेरिएशन भी क्यों होता है? So then you will also study about variation. So variation is differences. Variation are the differences among the organisms of same species. जो सेम स्पीशीज़ है, ह्यूमंस हैं, उनके जो भी पीपल हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो डिसिमिलरिटीज़ हैं, दैट इज़ नोन एज वेरिएशन. ओके, so in this chapter you are going to study about heredity and the branch of biology, branch of science that deals with the study of heredity. We call it genetics. So what is genetics? Genetics is a branch of science in which we study about heredity. Okay, so now we shall start studying why heredity occurs, why heredity is seen in many organisms including humans. It is more in organisms which reproduce sexually. Okay, because in sexual reproduction two parents are involved. Okay, so heredity is seen in all the organisms which reproduce sexually or in which sexual reproduction is seen. So where does heredity start? Heredity starts from a part of the body which is called gene. Gene. What is a gene? You study about cell, that in our body there are cells. In each cell you studied there is cytoplasm, there is nucleus. Do you remember that in nucleus you studied about chromosomes? In 9th class you studied about chromosomes. So इस पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, these are chromosomes and these are present in nucleus of the cell. In chromosomes there is a chemical found which is called DNA. DNA, which is known as deoxyribo, D for deoxyribo, N for nucleic, and A for acid. So DNA is deoxyribonucleic acid. Okay, and inside DNA a structure is found which is called gene. Okay, so gene is a unit, you can say
Gene is a unit, a part of DNA in chromosomes, in nucleus of the cell. Okay, so DNA is a part of, sorry, gene is a part of DNA. Gene is a part of DNA in chromosomes inside the nucleus. Okay, what is the function of gene? As you can also see in this picture that there is a cell, okay, and inside cell there is a nucleus. Inside nucleus there is chromosome, and inside chromosome there is DNA. DNA looks like this is DNA, double helical structure. Okay, and a unit of DNA is called gene. Clear? So you know about where gene is found in our body. Gene is a unit of DNA in chromosomes of the nucleus. What is the function of the gene? Gene is responsible for heredity. That part of DNA is responsible for heredity. So you can say gene is the hereditary unit. Gene is the unit of heredity. Okay. And it provides information. Listen carefully. Gene provides information for making a particular protein. Protein, what do you understand by protein? Okay, let's talk about hormones. You studied about hormones which are responsible for a lot of activities, lot of metabolism in our body. Okay, so all the chemical reactions in our body, okay, or any growth of our body, this growth and metabolism takes place due to hormones. Okay, and how do hormones function? For production and functioning of hormones, enzymes are required. Okay, hormones, for functioning of hormones which are responsible for growth and metabolism and all the chemical reactions in our body, require enzymes for their production and functioning. And these enzymes are chemically, biologically proteins. You know about this, right? These enzymes are proteins. So what do genes do? Genes are the genes provide information. Genes are the information source for production of proteins. क्योंकि जब प्रोटीन बनेगा तभी एंजाइम बनेगा, और एंजाइम्स होगा तभी हार्मोन्स होंगे, और जब हार्मोन्स होंगे तभी जो है बॉडी की सभी प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ विल अकर. ठीक है, आपने पढ़ा था एक ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है. सो अगर बॉडी में वो हार्मोन प्रेजेंट होगा तो बॉडी ग्रो करेगी, राइट. अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो बॉडी कम जो है ग्रो करेगी. ठीक है. सो जो जीन होता है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, फॉर मेकिंग प्रोटीन. ओके. So for example, if in your parent there is a gene which is making that protein, which has information for that protein, which is causing a lot of growth. ठीक है. If your parent has that gene which has information about that protein, which is making that hormone that is causing a lot of growth, means आपके parent के जीन में, जो आपका पेरेंट का जीन है उसमें वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो प्रोटीन बन रहा है जो बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा रहा है. ठीक है. सो अगर वो वाला जीन, ठीक है, वही जीन आपकी बॉडी में भी होता है तो आपकी बॉडी भी ग्रो करती है. वो इन्फॉर्मेशन, जो जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जब वो पेरेंट से आपके अंदर आती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आती है, ठीक है, सो वही इंफॉर्मेशन बिकम्स कॉज ऑफ ग्रोथ. सो दिस इज द पॉइंट बिहाइंड दिस कि हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स.
सो जो टॉलनेस का ट्रेट है, हमने बात की थी ट्रेट की, फीचर की, कैरेक्टरिस्टिक की। सो जो टॉलनेस का ट्रेट है वो आपके पेरेंट से आपके अंदर कैसे आता है? जीन से, क्योंकि जीन में ही इंफॉर्मेशन स्टोर है उस प्रोटीन की जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस. I ask you some questions. Before that, you can take a look at this picture also. There is cell, that nucleus, okay, and inside nucleus there is chromosomes, and you know that chromosomes are paired. ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है कि क्रोमोसोम जो है पेयर में होते हैं, सेट्स में होते हैं. ह्यूमन सेल हैज़ 46 chromosomes, means 23 pairs of chromosomes. ठीक है, chromosomes, and inside chromosomes there are thread-like structures made up of DNA. This picture you are seeing, this is DNA, double helical structure like this. Okay, so this is DNA, and gene is a unit of DNA. Okay, this is clear about. So here you can see this is a DNA. This is deoxyribonucleic acid. This is also deoxyribonucleic acid. About its structure you will study in higher classes. Now I ask you some questions that tell me, if both of your parents are tall, then is it necessary that you are also tall? Okay, or ask you in another organisms, if there are if we pollinate, if we carry out cross pollination between two flowers, दो flowers के बीच में, then if both the flowers are purple, okay, then can you tell that the offspring flower will also be purple? Okay, the answer is no. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बोथ पेरेंट्स में एक फीचर हो और वही फीचर आपके अंदर भी हो. So we will study in detail why this happens, how this transmission is actually taking place. And to do that we will have to study about gene. जीन के बारे में हमें बहुत गहराई से पढ़ना होगा. सो अभी तक आपको समझ आया है द बेसिक इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी and what are the units responsible and why this is actually happening. Okay, and you should know that also there are two kinds of traits. One is inherited traits. Inherited traits होते हैं that are acquired, inherited from parents, from birth. जो traits from birth से आपके अंदर है, inherited है, that are inherited traits. And sometimes many traits occur after your birth, these are called acquired. ठीक है, वो that can be any kind of traits which you acquire after your birth. ठीक, and you should know that only inherited traits जो होते हैं that are passed from generation to generation. Acquired traits cannot be passed from generation to generation. Okay, so now I will take you back to the chapter reproduction. What was the main most basic concept of this chapter, reproduction? You studied about two processes. टू प्रोसेसेस के बारे में आपने पढ़ा था. फर्स्ट प्रोसेस थी जिसमें आप गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा था, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा था. ठीक है, और दूसरी प्रोसेस थी जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रायो, जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल्स डिवाइड होने के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, सो you know that there are two kinds of cells in our body. Two kinds of cells in our body. Okay, one is somatic cell and another is reproductive cell, which are called gametes. Okay, so what is the difference between somatic cells and reproductive cells? Somatic cells are found everywhere in your body except in reproductive organs or gametes. So reproductive cells, somatic cells and reproductive cells. What is the difference between somatic cells and reproductive cells? There is one difference about chromosomes. Yes, you know about this. Diploid chromosomes, diploid cells and haploid cells, right?
You know about the diploid cells and haploid cells. Diploid cells, you have studied about this in chapter reproduction. Diploid and haploid, अगर आपको नहीं पता है मतलब आप क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हो. Diploid means डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स पेयर्ड क्रोमोसोम्स. जिस सेल में क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं वो डाइप्लॉइड सेल होती है, और जिस सेल में क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होती है. तो सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स में यही डिफरेंस होता है, दैट सोमैटिक सेल्स, स्किन सेल्स जो होती हैं वो आपकी डाइप्लॉइड होती हैं. सेट्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, व्हाट आर रिप्रोडक्टिव सेल्स? You should also know about this. In last chapter reproduction we studied, in males sperms are the reproductive cells, and in females eggs are the reproductive cells, right? Sperms are secreted by testes, and eggs are secreted by ovaries. So you know about this. So these cells, the male and female gametes, are reproductive cells, and these have single set of chromosomes. It means that these cells have only 23 chromosomes, not 23 pairs. Pairs नहीं, सिर्फ 23, और बाकी सेल्स में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्लियर है ना आपको? ये मैंने रिवाइज इसलिए कराया है ताकि अगर आपने वो लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको समझ आए. आपको लास्ट क्लासेस भी अटेंड करनी चाहिए. सो यू नो दैट सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है रिप्रोडक्शन में? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. जो सोमैटिक सेल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में कन्वर्ट होती हैं बाय अनपेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि आप क्रोमोसोम ये दिख रहा है आपको, ये अनपेयर हो जाएगा. ये जो एक सेट बना हुआ है क्रोमोसोम का, ये अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे, और एक ही क्रोमोसोम जो है एक सेल में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में. ठीक है. First formation of gametes take place, and after that fusion of gametes takes place, and zygote is formed, reproducing cell is formed. तभी तो जो है क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है. जैसे कि पेरेंट्स में एक पेरेंट है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, दूसरा पेरेंट है 46 क्रोमोसोम. जो ऑफस्प्रिंग होगा तो ऐसे देखा जाए तो इसका डबल होना चाहिए ना, 92 क्रोमोसोम होने चाहिए. बट ऐसा नहीं होता ना, 92 क्रोमोसोम्स तो होते ही नहीं हैं. तो 46 क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? 46 से क्रोमोसोम 46 कब बनेंगे? उस कंडीशन में बन सकते हैं जब यहाँ पर 46 ना हो, यहाँ पर हो 23 और 23. जब 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे उसी कंडीशन में जो है 46 क्रोमोसोम्स बन सकते हैं, और 23 जो क्रोमोसोम्स हैं तब बनते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ gametes, means meiosis. This process is called meiosis. So 23 plus 23 makes 46, right? So first unpairing of chromosomes takes place, then fusion takes place making 46 chromosomes. So this is the basic thing. You will its application is later in this chapter. So now why am I telling about this? Because जैसे क्रोमोसोम्स, यू कैन से दैट जैसे क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, वैसे ही कोई भी जीन जो होता है उसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं. मीन्स अगर मैं टॉलनेस ट्रेट की बात करूं, द जीन विच इज रिप्रेजेंटिंग टॉलनेस, तो क्या मैं उसको सिर्फ टी से लिखूंगा? नहीं. Every character, every trait, every gene has 2 forms. Gene is also paired. Gene has also 2 forms. So I will write 2 forms. And these 2 forms of gene is called allele. A-double-L-E-L-E. Allele or alleles. So what are alleles? Alleles are 2 forms of one gene or one trait. ओके. तो जो एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. सो नाउ वी विल स्टडी मोर. सो नाउ द एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट्स. एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट्स. यू विल हैव टू टेक केयर वेरी केयरफुली. बिफोर दैट you have to study about some words. What are those words? You know about allele, clear? Alleles are the different forms of a gene.
तो कोई भी जीन है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग टॉलनेस, तो आपको हमेशा उसके सेट में लिखोगे, ठीक है। टॉलनेस का जीन जो होगा उसकी 2 फॉर्म्स होंगी, ठीक है। सो अगर कोई जीन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय T, it means let's assume that capital T means tallness and small t means dwarfness, means shortness. Okay, so assume that जो capital T होगा वो टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी जो होगा वो शॉर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो आपकी बॉडी में जो टॉलनेस का जीन है, ठीक है, जिस जीन में टॉलनेस कैरेक्टर को बनाने वाले हार्मोन, एंजाइम या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, तो उस जीन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उस जीन को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? There are various ways in which you can represent that gene. कैपिटल टी ये भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी हो सकता है, कैपिटल टी ये हो चुका है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये भी हो सकता है। सो दिस 4 ways you can write the gene for tallness, ठीक है, और shortness. As you can see, these are 2 forms which are known as alleles. Okay. So आप मुझे बताइए कि अगर दोनों फॉर्म्स टॉलनेस की हैं तो क्या ऑर्गेनिज्म टॉल होगा? यस। अगर दोनों फॉर्म्स जो हैं जीन्स की, दोनों एलिलीज जो हैं वो शॉर्टनेस की हैं तो क्या ऑर्गेनिज्म शॉर्ट होगा? यस। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक जो जीन है, एक एलिली टॉलनेस का है, दूसरा एलिली शॉर्टनेस का है, उस कंडीशन में क्या होगा? नाउ यू विल लर्न अनदर वर्ड which is called dominant trait and recessive trait. Dominant and recessive. So dominant trait is that trait which expresses itself in this condition. Okay. इस कंडीशन में जहाँ पर टॉलनेस का भी एलीली है और शॉर्टनेस का भी एलीली है, उस कंडीशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट ट्रेट. सो देयर आर 2 कंडीशंस. वन इज होमोजाइगस कंडीशन एंड अनदर इज हेटेरोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन एंड हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स बोथ द एलीलीज आर सेम, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है. एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन? हेटेरोजाइगस कंडीशन में both the alleles will be different, like capital T, small t, capital T. So जो dominant trait, recessive trait की बात आती है वो heterozygous condition में आती है जब दोनों forms हो, ठीक है. If tallness is dominant then this gene will represent tallness. अगर shortness will be dominant then this gene will represent shortness. Okay, so you understand dominant and recessive. Dominant trait is that trait which expresses itself in heterozygous condition. Okay, there is another simple word, this is called progeny. Progeny, you know, progeny is the offspring. जो offspring होते हैं उसी को हम progeny कहते हैं या generation लिख सकते हैं, ठीक है. Another word is which you will need to read this chapter is pure plant and hybrid plant, ठीक है, प्योर एंड हाइब्रिड. सो जो आपने अभी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस पढ़ा ना, वही प्योर एंड हाइब्रिड होता है. इट मीन्स दैट इफ बोथ द एलीलीज आर सेम देन दैट इज प्योर प्लांट. प्योर, देयर इज नो डाउट, प्योर, आइदर इट इज टॉल और इट इज शॉर्ट, प्योर है दोनों, ठीक है. सो प्योर प्लांट मीन्स बोथ द एलीलीज आर सेम. हाइब्रिड जो होगा उसमें अलग अलग होंगे, दैट इज हाइब्रिड प्लांट. ओके, now I am asking one question, that if we carry out cross pollination you have studied in reproduction in flowering plants. So cross pollination में if
देयर इज वन राउंड सीड है, एकदम गोल राउंड सीड है। दूसरा जो है रिंकल्ड सीड है, टेढ़ा मेढ़ा सीड है। ठीक है, सो जो ऑफस्प्रिंग सीड होगा वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा या फिर कुछ और। अनदर एग्जाम्पल आई से देयर इज टॉल प्लांट, देयर इज शॉर्ट प्लांट। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल होगा, शॉर्ट होगा या फिर मीडियम हाइट का होगा, या फिर मीडियम हाइट का होगा। ठीक है, मतलब मीन्स उसमें जो जीन होगा वो टॉलनेस का होगा, शॉर्टनेस का होगा या फिर कोई इनका मिक्सचर होगा। ठीक है, या फिर अनदर एग्जाम्पल आई टेक, पी प्लांट है, जैसे कोई भी प्लांट है, तो फ्लावर, देयर आर वॉयलेट फ्लावर्स पेरेंट एंड वाइट फ्लावर पेरेंट। सो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो वॉयलेट होगा, वाइट होगा, या वॉयलेट वाइट को मिलकर जो कलर बनता है वो होगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो कैरेक्टर हैं, कलर, शेप, दीज आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। These are independent on each other. They do not depend on each other, they are independent. वॉयलेट और वाइट को कोई भी मिलाकर कलर नहीं बनेगा, समझ रहे हो? वॉयलेट एंड वाइट विल बी कैरिड इंडिपेंडेंटली। आइदर ऑफस्प्रिंग विल बी वॉयलेट और इट विल बी वाइट, इट विल नेवर बी लेस वॉयलेट और मोर वाइट। ठीक है, एग्जाम्पल आप इस फिगर में देखिए, देर इज वन वॉयलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। यू कैन सी जो ऑफस्प्रिंग होंगे या तो वॉयलेट होंगे या वाइट होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक राउंड सीड है, एक रिंकल्ड सीड है, तो ऑफस्प्रिंग या राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। ठीक है, दीज कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। सो देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज मेंडल, ग्रेगर मेंडल, you can remember Mendel. So he is known as father of heredity. जो हेरिडिटी के रूल्स हैं, जो साइंस है कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स, कब, क्यों, कैसे होते हैं, वो सब मेंडल ने बताया। एंड उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, जो पी का प्लांट होता है, मटर का प्लांट होता है, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, पी प्लांट पर ही स्टडीड वेरियस कैरेक्टर्स। उसने टॉलनेस पढ़ा, टॉलनेस, शॉर्टनेस, ओके, और कलर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, विच कैरेक्टर्स ही स्टडीड, टॉल, शॉर्ट। टॉल शॉर्ट में याद रखिए पी प्लांट में टॉल जो है डोमिनेंट होता है। ठीक है, सीड का उसने पढ़ा था राउंड है या रिंकल्ड है, गोल सीड है या टेढ़े मेढ़े सीड है, राउंड और रिंकल्ड। इसमें जो है डोमिनेंट आप याद रखिए राउंड होता है। ठीक है, और उसने पढ़ा था फ्लावर्स के कलर ऑफ फ्लावर्स जो था वॉयलेट, और देयर आर टू काइंड्स ऑफ कलर्स इन प्लांट, वॉयलेट और वाइट। ठीक है, violet and white, and you should remember that violet is the dominant, and in flowers he studied about colors which were yellow and green। जो सीड्स के कलर थे वो येलो और ग्रीन, दो टाइप के सीड होंगे पी प्लांट में। ठीक है, सो येलो सीड जो होगा, येलो कलर जो होगा सीड का, वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, फ्लावर्स का कलर वॉयलेट एंड वाइट, एंड जो सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, येलो इज डोमिनेंट। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए कि कौन कौन से ट्रेड्स उसने पढ़े और उसमें से डोमिनेंट कौन सा होता है। ओके, सो ही कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। सो फर्स्ट उसने टॉलनेस के बारे में रिसर्च किया। सो पेरेंट क्या लिए उसने, पेरेंट जो पी प्लांट के लिए वो प्योर पेरेंट्स लिए। प्योर पेरेंट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, जिसमें बोथ द एलीलीज आर सेम, both the alleles are same. So Mendel took one tall pea plant and one short pure tea plant, okay, and he crossbred each other. He carried out cross pollination between each other. Okay, so what happens, I told you in reproduction, जब beef process होती है तो फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे।
गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि आपने बताया हम था अभी कि क्रोमोसोम्स अनपेयर होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में ही तो होते हैं। देन जीन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, जीन्स के जो ट्रेट्स हैं, जीन्स के जो एलीलीज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो भी अनपेयर हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स these two alleles, these two sets of genes now get unpaired, अनपेयर होंगे जब T और T, एक जो है सेल है उसके क्रोमोसोम्स में जीन्स जो है वो T और T हैं, ये अनपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और गैमेट की जो सेल बनेगी उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, एक ही जीन होगा, और वो जीन कौन सा हो सकता है, टी ही तो होगा, कैपिटल टी ही तो होगा, क्योंकि दोनों टी हैं, ठीक है। दूसरा जो पेरेंट है उसमें स्मॉल टी जीन है, गैमेट बनेगा तो एक सिंगल जो जीन ही आएगा, और सिंगल जीन कौन सा आएगा, सिंगल क्रोमोसोम सिंगल जीन कौन सा आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। सो दैट्स हाउ गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ओके। आफ्टर दैट फर्स्ट जनरेशन विच इज कॉल्ड filial one generation, F1 generation is filial one generation, filial FILIAL, filial one generation, okay, which is produced when pure plants are fertilized together, जब प्योर प्लांट्स को फर्टिलाइज करके फर्स्ट जो जनरेशन आएगी दैट इज F1 जनरेशन, ठीक है। सो अब फर्टिलाइजेशन के बाद बोथ द गैमेट्स विल फ्यूज विद ईच अदर and the gene representation will be capital T and small t. Okay, now we will study this very carefully again. Mendel took two pure plants. So the parents were, you have to write parents, kept tall plant and short plant. इसमें कोई confusion नहीं है, दोनों प्योर है। फिर गैमेट्स, जी गैमेट्स आपको पूरा गैमेट्स लिखना है, यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ। गैमेट्स जो बनेगा वो सिंगल सेट होगा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन होगी, उसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। एंड दिस कैपिटल टी स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स जीन फॉर विच ट्रेट, टेल मी, टॉलनेस और शॉर्टनेस। आप बताइए, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो हाइब्रिड प्लांट हो तो डोमिनेंट ट्रेट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड विच इज डोमिनेंट, टॉलनेस। सो F1 जनरेशन विल बी tall plant, F1 generation will have all tall plants, ठीक है। सो बाय दिस टाइम उसकी रिसर्च पूरी नहीं हुई थी, उसने टॉल और शॉर्ट प्लांट को जब फर्टिलाइज किया तो टॉल प्लांट बना। व्हाट हैपन टू शॉर्ट प्लांट, क्या टॉल प्लांट में शॉर्टनेस का कोई फीचर नहीं था। ये जो आप स्ट्रक्चर जीनोटाइप देख रहे हो टी टी, ये तो हमें बाद में पता चला है। मेंडल ने ऑब्जर्व क्या किया था कि जब टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को उसने फर्टिलाइज किया तो टॉल प्लांट बना, बस इतना ही उसे पता था। तो व्हाट हैपन टू शॉर्टनेस, उस शॉर्ट प्लांट का क्या हुआ, शॉर्ट वाले जीन का क्या हुआ, उसके लिए उसने फिर आगे एक्सपेरिमेंट अपना किया। उसने क्या किया फिर, जो F1 जनरेशन के प्लांट थे उसका जीन फॉर्म क्या बना है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आया है F1 जनरेशन का। अब F1 जनरेशन के प्लांट्स को इसने फर्टिलाइज किया, टू प्लांट्स, टू पेरेंट, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स क्या बनेंगे इस कंडीशन में, अनपेयर होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, तो कैपिटल टी भी आ सकता है सिंगल में, स्मॉल टी भी आ सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। इसी तरह की सेकंड पेरेंट में भी जो गैमेट बनेगा उसमें कैपिटल टी जीन हो सकता है, स्मॉल टी जीन हो सकता है, ठीक है। अब इसका आप फ्यूज़न कैसे करोगे, अब आपको पता है ये सेकंड जनरेशन आप बना रहे हो तो ये F2 जनरेशन होगी, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या हो सकता है, ये कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है, या फिर ये वाला कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। बीच में लाइन ले लीजिए, देयर आर डिफरेंट पेरेंट, ये कैपिटल टी इस टी के साथ या फिर इस टी के साथ फ्यूज़ हो सकता है ना, या फिर ये स्मॉल टी इसके साथ या फिर इसके साथ, ठीक है। सो क्या क्या जो है प्रोडक्ट्स जो ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं व्हेन बोथ कैपिटल टीज फ्यूज टुगेदर। देखिए एक आपको वन पेरेंट में से लेना है, दूसरा दूसरे पेरेंट में से लेना है, ठीक है। वन प्लांट में से लेना है, दूसरा दूसरे प्लांट में से लेना है, आपस में नहीं होगा, ये तो एक ही प्लांट के हैं, ठीक है। सो वन टी कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी हो सकता है,
बहुत स्मॉल टी हो सकते हैं, बहुत कैपिटल टी हो सकते हैं। इसको हम और अच्छे से ड्रॉ करते हैं एक बार। हाँ, आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करते रहिए, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। पी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हम सेकेंड जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, गैमेट्स विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी 1 या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको आप सर्कल में कर दीजिए। गैमेट्स हैं F2 जनरेशन में आप बनाएंगे। तो F2 जनरेशन में आप टेबल से कर सकते हैं, इजी रहेगा। एक टेबल बना लीजिए, टी को आपको फ्यूज़ करना है टी और टी के साथ, ठीक है। ऐसी टेबल बना लीजिए आप, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बोथ कैपिटल टी विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कैपिटल टी, वन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस टी एंड दिस टी स्मॉल टी कैपिटल टी, and this small t makes small t. So as you can see there can be 4 different kinds of offsprings, ठीक है। सो इसको अलग से लिख लेते हैं। F2 जनरेशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या बने अपने पास। द प्रोडक्ट्स ऑफ F2 जनरेशन आर, ये पेरेंट है, तो क्या क्या बने हैं F2 जनरेशन में। कैपिटल बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, स्मॉल टी कैपिटल टी बना है, और स्मॉल टी बना है, ठीक है। सो देखिए एक चीज़ और आप देखिए, वर्ड होता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर, अपीयरेंस, कि टॉल है या शॉर्ट है, ब्लू है या रेड है। फिनोटाइप, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल टी का फिनोटाइप क्या है, यू विल से टॉल। अगर मैं आपसे पूछूं बोथ स्मॉल टी को फिनोटाइप क्या है, आप कहेंगे शॉर्ट। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या है, क्योंकि टी डोमिनेंट है, टॉलनेस डोमिनेंट है, तो इसका फिनोटाइप भी टॉलनेस होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप, अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप होता है स्ट्रक्चर जीन की क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं टॉलनेस जो है उसका जीनोटाइप बताइए, तो क्या हो सकता है टॉलनेस का जीनोटाइप। कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल टी नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल टी जीनोटाइप किसका है, शॉर्टनेस का, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप आपने समझ लिया है, ठीक है। अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो भी आप बना सकते हैं कि इसमें जो है फिनोटाइप का रेशियो बताइए, मतलब कितने जो है टॉल हैं कितने शॉर्ट हैं, तो इसमें 3 टॉल हैं 1 शॉर्ट है, तो 3:1 फिनोटाइप होगा, ठीक है। जीनोटाइप्स आपसे पूछ लिया जाए तो कितने टाइप के जो हैं इसमें जीनोटाइप्स हैं, 3 टाइप्स के हैं, 1 टी, सेकेंड टाइप है एक छोटा टी एक बड़ा टी, और तीसरा टाइप है दोनों छोटे टी। तो इसमें जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा, ठीक है। तो आपको समझ धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सो एफ देखिए, अब इसको हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जो F1 जनरेशन थी उसमें ये पेरेंट थे और ये जो है ऑफस्प्रिंग था, ठीक है। जो F2 जनरेशन थी उसमें ये पेरेंट थे, F1 वाले ऑफस्प्रिंग, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये ऑफस्प्रिंग्स थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन में तो देखा उसने टॉल थे, अब सेकंड जनरेशन में उसने देखा कि टॉल भी आए शॉर्ट भी आए। तो अब आप सोचिए जब F1 जनरेशन टॉल था, जब मेंडल ने सोचा कि F1 जनरेशन टॉल ही था, तो F2 में शॉर्ट कहाँ से आ गए। तब उसने समझ आया, तब उसने डिस्कवर किया कि अगर कोई जीन टॉलनेस का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ टॉल वाला ही जीन है, उसमें दोनों जीन भी हो सकते हैं, टॉल शॉर्ट। आप देख ही रहे हैं F1 में दोनों जीन थे, टॉल का भी शॉर्ट का भी, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट टी था, कैपिटल टी था, टॉलनेस था, इसलिए वो टॉल रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो मेंडल ने अब डिस्कवर किया फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, उसे उस कंडीशन में पता चला जब उसने F2 जनरेशन बनाया, एंड देन ही फाउंड आउट दैट the tall plants of F1 generation gave short plants. It meant that tall plant in F1 generation also had shortness character, shortness gene, but that gene was recessive. That's why it did not appear in F1 generation. Clear?
So you can say that the character, the trait which expresses itself in F1 generation is called dominant trait. जो trait F1 generation में अपने आप को appear करता है, शो करता है, that is dominant trait, और जो नहीं कर पाता शो, that is recessive trait. ठीक है. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे. पहला क्वेश्चन था कि अगर एक पिंक फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो सकता है. तो ऑफस्प्रिंग हो या पिंक होगा या वाइट होगा, दोनों का मिक्सचर नहीं होगा. ठीक है. एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई पिंक प्लांट है तो उसमें जो जीन की स्ट्रक्चर है, जेनेटिक कोड जो है उसका, वो पिंक, दोनों एलीलीज पिंक के होंगे या फिर एक पिंक और एक वाइट भी हो सकता है. हाँ, एक पिंक और वाइट भी हो सकता है. ओके, प्रोवाइडेड दैट पिंक कैरेक्टर इज डोमिनेंट. ठीक है. पिंक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वाइट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक जीन में दोनों जो है कैरेक्टर्स हो सकते. सो ऑन दिस बेसिस मेंडल गेव सम लॉज. What were those laws? We will study about them. So by this experiment, he gave some laws. So this cross, जो आपने अभी क्रॉस पढ़ा है, that this was monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों था ये? क्योंकि आपने सिर्फ इसमें एक ही कैरेक्टर को पढ़ा जो था टॉल. ठीक है. या फिर आप किसी और कैरेक्टर को पढ़ते हैं, कलर को पढ़ते हैं. ठीक है. इफ़ द क्रॉस पोलिनेशन इज कैरिड आउट बिटवीन flowers to study only one trait. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड. इसमें हमने अभी सिर्फ टॉल पढ़ा था. ठीक है. सो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस इज डन टू स्टडी 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली. एक साथ आप 2 कैरेक्टर पढ़ रहे हैं. जैसे कि अगर आपने टॉलनेस के साथ जो है कलर का भी जो है कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग ही गेव 2 लॉज. लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो आप समझ चुके हैं, दैट ईच ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 forms which are called alleles, and one is dominant, another is recessive. This is law of dominance. ठीक है. One character represents itself in heterozygous condition, that is dominant character. ठीक है. सो डोमिनेंस आपको पता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है. दूसरा है सिग्रीगेशन. सिग्रीगेशन मीन्स अलग अलग होना. अलग अलग कब होते हैं एलीलीज? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम. ओके. सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन these alleles get separated from each other to form gamete. So this is law of segregation. ठीक है. So very easy. I will send you its notes. Now what did Mendel do next? So we will study that in next class, dihybrid cross, and we will do some more exercise. This class was very important. आपको इसको एक बार में समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देखना है. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे. ओके.